ایک آپ کے اندر کی خوبصورتی ہے جو سب کو نظر نہیں آتی، رائٹ؟ آٹومیٹکلی جب بھی آپ جائیں گے رشتہ دیکھنے کے لیے سب سے پہلے آپ اس کو باہر سے دیکھتے ہیں، آپ اندر سے نہیں دیکھتے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اندر سے کیسا ہے. تو باہر سے اپنے آپ کو خوبصورت بنانا کوئی مشکل بات نہیں ہے، کچھ بھی مشکل نہیں ہے. آپ ایک گھر میں صرف اپنے آپ کہیں گے آپ شاید اس طرف نکل گئی ہیں، لیکن یہ ضروری باتیں ہیں. آپ اگر کلینزر یوز کرتی ہیں، کوئی ایک نائٹ کریم یوز کر لیتی ہیں، کوئی آپ کے گھر میں اپٹن ہے، اپٹن از دا بیسٹ سورس، آپ کے فیس بہت گلو کرتا ہے، آپ وہ یوز کر لیتی ہیں تو آپ الحمدللہ آپ کلیئر ہو جائے. آپ کو کس نے کہا کہ آپ بہت زیادہ پیسے برباد کریں؟ نہ کریں. آپ سادہ رہنا چاہتی ہیں لیکن سادگی میں بھی ایک گریس ہونی چاہیے، خوبصورتی ہونی چاہیے. آپ کے ہسبینڈ دیکھے تو آپ کو دیکھ کے خوش ہو جائے. دیکھیں اب آپ باہر جائیں گے آپ دیکھیں ہر جگہ پہ لڑکیاں اٹریکشن اتنی زیادہ ہے، تو آپ کا ہسبینڈ جب اس کو گھر سے خوشی نہیں ملتی تو وہ باہر کیوں نہ دیکھے گا؟ اسی طرح سے جو ہسبینڈ ہیں اگر وہ گھر آتے ہیں تو گھر آتے ہی سب سے پہلے اپنے کپڑے چینج کریں. آپ کی بیوی آپ کا انتظار کر رہی ہے، وہ بھی آپ کو دیکھے تو اس کو بھی خوشی ہو. آئیں دیکھیں آپ کے منہ سے اسمیل تو نہیں آ رہی، اپنے کپڑے چینج کریں، خوشی سے عورت کو ملیں. اور باہر آپ کے جتنی زیادہ آپ پریشان تھے، یہ نہیں کہ وہ پریشانی لا کے ساری کی ساری عورت کے کندھوں پر ڈال دیں یا بچوں کے اوپر نکالیں. فرسٹریشن ایسا نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح عورت آتے ہی مرد گھر آیا ہے اور آتے اس کو ساری تقریر سنا دی، یہ ہوا وہ ہوا، سسرال انہوں نے یہ کیا، آج یہ ذمہ داری، یہ چیز لا دیں. ٹائم دیں اس کو، تھوڑی دیر ریلیکس ہونے دیں، اس کے بعد بات کریں. ٹھیک ہے؟ اچھا جی، تو اب جو ہے یہ رشتے سے پہلے آپ نے سب کچھ ڈیسائیڈ کر لیا. اچھا ایک اور بات، تحفۃ العروس ایک بک ہے جو کہ عورت کے لیے ہے، اسی طرح تحفۃ الدلہا ہے، آئی تھنک یہ دو بکس ہیں، اور ایک تحفۃ الزوجین بھی ہے جو میاں بیوی دونوں کے لیے. اچھا جن کی بھی شادیاں ہونے والی ہیں اگر وہ لڑکی ہیں تو جائیں تحفۃ العروس لے کے آئیں. اس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کے لیے کیسے اس ریلیشن کو آپ نے بلٹ اپ کرنا ہے، کیا کیا آپ کے لیے ضروری ہے. دلہے کو بھی بک پڑھنی چاہیے. ہمارے یہاں پہ لوگوں سے تو مشورے لے لیے جاتے ہیں لیکن بکس اسلامک بکس ریڈ کی نہیں کی جاتی، اور یہ مست کریں. اس کے علاوہ آپ یوٹیوب پہ جائیں، یاسر قادی ہے، ان کا ایک انگلش میں سیریز ہے گارمنٹ کے نام سے، مجھے ایگزیکٹلی اس کا نام یاد نہیں آ رہا کیونکہ میاں بیوی دوسرے کے لیے گارمنٹ ہے، تو اگر کسی کو یاد ہے تو پلیز یہاں مینشن کر دے. وہ آپ ایک دفعہ ضرور سن لیں کہ کس طرح سے آپ نے اس ریلیشن کو آگے لے کے جانا ہے. تو یہ سب کچھ آپ کو پہلے سے آنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا؟ چلیں جی، اب یہ ہے کہ اب سب کچھ ڈیسائیڈ ہو گیا. آپ نے ماں باپ کو کہہ لیا، آپ نے پچھلے سارے کے سارے چیپٹرز اپنے کلوز کر دیے، جو آپ کی ڈیمانڈس تھی آپ نے بتا دی، لڑکے لڑکی نے دونوں نے. اب جناب رشتے کا سیشن شروع ہوتا ہے. اب یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں دو فیملیز، امیجنیٹو فیملیز میں نے آپ کے سامنے رکھوں گی. ہوں گی وہ ریالٹی بیس لیکن نام میں نے رکھ لی ہوں گی. ایک کا نام میں نے لڑکی کا نام رکھا ہے آنا، رائٹ، اور ایک کا نام رکھا ہے میں نے گڑیا. تو یہاں پہ میں کسی کو فوکس نہیں کر رہی، صرف ایک دو آپ بتا دیں. میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہمارے معاشرے میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، رائٹ. تو دونوں کی پرائورٹیز کیا ہوتی ہیں، وہ رشتہ کیسے سلیکٹ کرتے ہیں. انشاءاللہ 4 days میں ہم یہ سب کچھ کور کریں گے اور آپ کو انشاءاللہ مزہ بھی آئے گا. اور اگر کوئی چیز میں مس کر دوں تو آپ لوگ جو ہے وہ مینشن کر دینا کہ بھئی ہمارے ایریا میں یہ بھی رسم ہوتی ہے، تو وہ بھی آپ اپنے کمنٹ باکس میں مینشن کر دیں. اس کے علاوہ جو لوگ اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتے ہیں، ڈو شیئر ود اس کہ ہم نے شادی کی اور یہ ہوا، اچھا بھی اور برا بھی، دونوں پہلو. آپ ہمیں آئی ایم پاکستان پہ ان باکس کریں. اگر بہت پرسنل ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ پیج پہ نہیں کرنا چاہتے تو میرا پیج ہے موٹیویشنل آڈیوز ہے منیبہ فاطمہ، وہاں مجھے مینشن کر دیں. انشاءاللہ جو بھی نیکسٹ ہماری آڈیو ہوگی جو انشاءاللہ 15 کو ہے، ٹھیک ہے، 13 15 17 19 یہ 4 days ہیں، تو اس میں انشاءاللہ آپ کا واقعہ جو بھی بات ہے وہ شیئر کی جائے گی. اگر آپ اویئرنیس دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ضرور دیں، لوگوں کے کام آتی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے ہمیں ان باکس کر دینا. اور جو ایکسٹرا رسم و رواج ہوتا ہے وہ بھی آپ کمنٹ باکس میں لکھتے جائیں. ٹھیک ہے، مجھ سے کچھ مس ہو جائے تو آپ لوگ کور کر لیں. ٹھیک ہے جی. دو فیملیز میں دیکھ لی، ایک انایا کہہ سکتے ہیں، اور ایک جو ہے وہ گڑیا. ٹھیک ہے، اب رشتہ سلیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب رشتے والے جو آتے ہیں دیکھنے کے لیے، ٹھیک ہو گیا. اب جو کہ آنا کی فیملی ہے وہ بہت ایرسٹوکریٹک فیملی ہے اور بہت ہی امیر ہیں، اور جو دوسری فیملی ہے گڑیا وہ نارمل لوگ ہیں، مڈل کلاس ہیں، لیکن ان میں سینس آف ریلیجن ہے. ٹھیک ہو گیا. اب جب رشتے والا یا رشتے والی جو رشتہ کرواتے ہیں درمیان میں بانڈنگ کرواتے ہیں تو
वहाँ अच्छा एक छोटी सी बात और कि जो रिश्ते देखे हैं इस वक्त, ठीक है, वो लड़का और लड़की दोनों इस्तिखारे की दुआ डेली पढ़ा करें ताकि आपके लिए आसानियाँ आए, ठीक है। अब जब रिश्ता जिसको भी कहना है कि आपने भाई हमें दो फैमिलीज को मिला दें, वो आदमी या औरत आपके घर में आते हैं तो उनको पैसे दिए जाते हैं, राइट, और कहीं कहीं हजार उनको दिए जाते हैं, और जितने ज्यादा हजार दिए जाते हैं वो उतना बेहतर आपको रिश्ता देने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो देखें मेरी बात सुने, वो एक सोर्स जरूर है लेकिन रिश्ता अल्लाह के हाथ में, वो सोर्स जरूर है। आप ये लालच ना दें उनको आके आप इतने इतने पैसे देंगे, इतना इतना कुछ होगा, ऐसा ना करें। वो सोर्स जरूर है, ठीक है, लेकिन क्रिएट करने वाला अल्लाह सुब्हानहू व तआला है, ठीक है। तो एक टिप दे रही हूँ आपको कि ये चूंकि आते हैं तो इनको चाय पानी के लिए थोड़े पैसे चाहिए होते हैं, तो आप स्टार्ट में से उनको कुछ पैसे दे देते हैं, 1000 दे देते हैं, 500 दे दें, दैट्स इट। उसके बाद उनको कहें जब आप रिश्ता करवा देंगे तो फिर हम आपको, जाहिर है उनको अपना क्या कहें कमीशन चाहिए होता है। अल्लाह करे कि आप इस पूरे प्रोसेस से ना गुजरे, मेरी दुआ अल्लाह ताला आपको कभी इस प्रोसेस से ना गुजारे और आपके इर्द गिर्द वाले लोग ही आप लोगों के रिश्ते करवा दें, क्योंकि ये एक बड़ा तकलीफ दे मरला, बहुत ही हैक्टिक मरला होता है मर्द के लिए भी और औरत के लिए। मर्द के लिए शायद इतना ना हो लेकिन औरत के लिए बहुत टफ चीज़ होती है, किसी के सामने जाना, प्रेजेंट होना, और माँ बाप के लिए कितनी परेशानी होती है ये आप सब जानती हैं। तो अल्लाह ताला आपको इस प्रोसेस से ना गुजारे, आमीन आमीन। हमें अपने इर्द गिर्द देखते रहना चाहिए, अगर हमें कोई अच्छा परफेक्ट मैच मिल रहा है तो उसको कर देना चाहिए, ठीक है। अब रिश्ते वालों को आज अना के जो घर वाले होंगे वो कैसे होंगे मैं बताती जाऊंगी इंशाल्लाह। आपने इसको देखते जाना कि क्या हमारी फैमिलीज में ऐसा तो नहीं है। उनको दिया जाता है 10,000 रुपये कि आपने हमें रिश्ता ला के देना है, रिश्ता बहुत अच्छा हो जी, ठीक है ना। हमें लड़का चाहिए वेल सेटल अमीर, जिसके हमारी बेटी जो है वो भी उसके पास इतनी गाड़ियां हैं और उसके पास इतनी गाड़ी, इतना बैंक बैलेंस होना चाहिए। उस बंदे को समझ आ रहा था कि किस तरह के लड़का चाहते हैं, ठीक। अब जो दूसरे घर वाले होंगे, गुड़िया के घर वाले, वो क्या कहते हैं, ये एक मैं बता रही हूँ कि ये माशरे में एक दो, मैंने इसको दरमियान में एक लाइन खींच दी है कि दो किस्म के लोग हैं, ठीक है ना। गुड़िया के घर वाले क्या कहते हैं, हमें पढ़ा लिखा लड़का चाहिए, पहली बात शरीफ हो, ठीक है, उसमें अल्लाह का तकवा हो, यानी अल्लाह से डरने वाला हो, ऐसा हमें चाहिए, ठीक है। वो कहते हैं जी ठीक है, सही है रिश्ते वाला। अब रिश्ते वाला अगर तो मर्द है तो वो कहेगा कि वो लड़की को सामने लेके आए, ऐसे तो नहीं हो सकता। तो लड़कियां आप जो लड़की होगी गुड़िया, वो तो पर्दा करने वाली है, वो तो कहेगी मैंने तो सामने नहीं आना, मर्द के सामने तो मैं नहीं आऊंगी। तो हो सकता है रिश्ते वाला कहे कि जी सॉरी हम आपकी बेटी का रिश्ता नहीं करवा सकते, तो उनके बोले कोई बात नहीं, अल्लाह हाफिज, कोई मसला नहीं, ठीक है। फोर्स ना करें अपनी बेटी को कि आप पर्दा उतार के, नहीं, कभी भी नहीं। एक बात याद रखें, हर चीज का वक्त मुकर्रर है, उस मुकर्ररा वक्त पे ही वो काम होना है, ना उससे पहले होना है और ना उससे बाद में होना है। देखें हमारे यहाँ कहा जाता है कि चूंकि लड़की छोटी है उसका रिश्ता नहीं हो रहा, चूंकि लड़की मोटी है उसका रिश्ता नहीं हो रहा, चूंकि लड़की पर्दा करते उसका रिश्ता नहीं हो रहा, ये सब फेक बातें हैं। रिश्ते का टाइम मुकर्रर है, इसको आप ये फैक्टर्स नहीं होते, एज बहुत ज्यादा होगी इसलिए रिश्ता नहीं हो, नहीं, जब रिश्ता होना होता है ये सब कुछ पीछे हट जाता है। सपोज सूरज है, सूरज निकला हुआ है और आगे बादल आ गए हैं और बारिश हो रही है, लेकिन आप जानते हैं कि सूरज निकला है, वो सूरज के निकलने का टाइम है, बादल आगे आ गए हैं, जैसे ही वो बादल झटेंगे सूरज दोबारा से आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। तो सूरज ने अपने टाइम पे निकलना। इसी तरह से आपका रिश्ता आपके वक्त पे होना है। आपके चैलेंजेस जरूर हो सकते हैं, अगर कोई लड़की दीनी है तो ये चैलेंज हो सकता है कि देखते हैं, अल्लाह भी टेस्ट करता है कि ये कॉम्प्रोमाइज कर जाती है पर्दे के ऊपर या स्टिक है, फॉर्म है। ये मत सोचें कि नहीं हमारी बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा। मेरे जहन में अभी ऐसी लड़कियां हैं जो पर्दा करती हैं, वो बैठी नहीं है और लोग कहते हैं जी ये चूंकि पर्दा करती हैं तो इसलिए इनका रिश्ता नहीं हो रहा। नहीं, उनका वक्त ही नहीं आया। जब वक्त आता ना तो फिर कुछ भी नहीं देखा जाता। अल्लाह जालिम है? अगर कोई बंदा रिलीजन को फॉलो कर रहा है, उसको प्रैक्टिस कर रहा है, तो अल्लाह जालिम है कि उनका रिश्ता ना होने दे? नहीं, अल्लाह का तरीका हरगिज नहीं है, हरगिज नहीं है। तो वक्त मुकर्रर है, जिसकी जैसे किसी के बच्चे नहीं हो रहे होते तो वो कहते हैं जी अब हम क्या करें, अब ये करें वो करें। वक्त मुकर्रर है, आप अल्लाह से दुआएं करें, ठीक है, रिश्तों की भी कोशिशें करें, लेकिन वो तभी होना है जब उसका मुकर्ररा वक्त है। तो बहुत ज्यादा एंजाइटी में ना आ जाए, परेशान ना हो। कई लड़कियां ऐसी हैं
जो अपनी स्टडीज कंप्लीट करने के बाद बस इंतजार कर रही होते हैं अब कब रिश्ता होगा, मेरी तो इतनी फ्रेंड्स का रिश्ता हो गया, मेरा क्यों नहीं हो रहा, उनके तो बच्चे भी हो गए हैं, फिर मेरा रिश्ता क्यों नहीं हो रहा, और अपने डिप्रेशन में अपनी लाइफ गुजारते हैं, उनको देख देख के उनके माँ बाप परेशान हो जाते हैं। तो प्लीज खुदाया, जब आप अपनी स्टडीज कंप्लीट कर लेती हैं और रिश्ते जो है वो देखे जा रहे हैं आपके, तो काम डाउन रहें, कोई ना कोई काम करते रहें, कोई एक्टिविटी करें, अपने मुआशरे के लिए काम करें, दीन को सीखना शुरू करें। अल्लाह की एक टाइमिंग है, ठीक है। अब देखा ये जाना है कि आप पेशेंस से कैसे गुजारते हैं उस वक्त को। बाद में तो जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आप पछताएंगे, इतना टाइम मैंने ज़ाया कर दिया, अल्लाह ने आपको टाइम दिया, काम करें। मैं आप लोगों के सामने हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी सिंगल हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ कि मैंने अपने टाइम को यूज किया हुआ। शादी तो वो है जो कभी ना कभी हो जानी है, राइट। तो मैं इस टाइम को क्यों ज़ाया करूँ, मैं क्यों ना लोगों के लिए कुछ ऐसा काम करूँ जिससे उनको फायदा हो और मेरी अपनी जात को फायदा हो और आखिरत मेरी संवर जाए। सदका जारिया के लिए काम करें, राइट। तो हर वक्त मुकर्रर है, ठीक है। अब जो है गुड़िया का भी जो है वो रिश्ता देखने के लिए लोगों ने आना है, और आना का भी रिश्ता देखने के लिए आना। अब आना का जो रिश्ता आ रहा है वो आ रहा जी कनाडा से, यस, लड़का आ रहा है कनाडा से, कनाडा का रिश्ता है। अब आप सोचें वो फैमिली, ओहो कनाडा से रिश्ता, लड़के की तस्वीर देखी जाती है, पता नहीं वो कितनी पुरानी है, बहरहाल उसमें लड़का बड़ा प्यारा लग रहा है, क्या कहते हैं जबरदस्त उसने ड्रेसिंग की है, पूरा घर इम्प्रेस हो गया, लड़का कनाडा 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 हर जगह पे बात फैल गई है, वहां पे उसका बड़ा बिजनेस है। मिले नहीं आप कभी ना, आपने कभी किसी से पूछा है, लेकिन आप बहुत खुश हैं कि लड़के का रिश्ता बाहर से है, हमारी लड़की तो बहुत खुश रहेगी, वो लड़का बहुत प्यारा भी लग रहा है। तो जनाब दूसरी तरफ गुड़िया का रिश्ता आता है, और लड़की जो है गुड़िया उसने मास्टर्स किया हुआ है, एमए किया हुआ है, और लड़का जो है वो बीए किया हुआ है, लेकिन उसके फादर मदर कहते हैं कि भाई रिश्ता शरीफ है, आप हमें दिखाएं। और लड़का एवरेज लुकिंग होता है, ये आप कह लें बहुत अच्छा भी होता है, लेकिन वो ये देखते हैं कि लड़का है कैसा, तो दोनों के पेरेंट्स जाते हैं उनके घर देखने के लिए। अब आना के जब घर वाले जाएंगे तो लड़का वहाँ मौजूद नहीं होगा, क्योंकि वो तो कनाडा में है, तो वो घर वालों से मिलेंगे, घर वाले बहुत अच्छे लगे हैं, उन्होंने अपने आप बहुत अच्छा प्रेजेंट किया, जी हम खुश हो गए। और दूसरी तरफ लड़का चूंकि पाकिस्तान का है तो वो तो यहाँ पे ही है, तो जाके उन्होंने जो है वो रिश्ता देख लिया। अच्छा, अब जरूरी नहीं कि बाहर के रिश्ते हैं वो बुरे ही आए, मैंने वैसे आपको एक बात बता रही हूँ, अगर आप बाहर रिश्ता भी कर रहे हैं तो आप स्काइप पे आ जाएं, स्काइप पे ऑनलाइन हो, उससे बात करके देखें। दूसरी बात, अना के घर वालों ने पता ही नहीं करवाया कि लड़का जो है बाहर काम क्या करता है, या एक दो जगह से पता कराया बस ठीक है सही है, क्योंकि वो टोटली बाहर था, आपको नहीं पता कि वहाँ अक्सर ये क्या होता है कि बाहर के लड़कों ने बाहर शादियां कर ली होती हैं, सबने नहीं, लेकिन आपको नहीं पता होता, ठीक है। तो कोई इंसान जो वहां का रहने वाला है उससे जरूर पता करवाएं कि लड़का कैसा है, ये जरूर करें, ये आपका हक है, जरूर पता करें। और अगर आप पाकिस्तान में भी रिश्ता कर रहे हैं तो जरूर पता करवाएं, ऐसे अंधाधुंध रिश्ता करने के लिए किसी ने कहा बस अब जल्दी कर दें। मेरी एक फ्रेंड की, मेरी बहन की फ्रेंड है, तो उसका रिश्ता इसी तरह हुआ जी, अब लड़की की एज तो बहुत ज्यादा हो गई है, नहीं बस मतलब छोटी थी अभी, वो ज्यादा 19-20 की होगी, तो रिश्ता आया जी, लड़का सऊदिया में था, कर दिया, वो लड़का वापस आया और फिर दोबारा कभी गया ही नहीं बाहर, यहाँ गया भी तो उसके बहुत बुरे हालात हो गए, तो बस उन्हें किसी से पूछा ही नहीं, अपनी बेटी दे दी। देखिए एक आप जिम्मेदार हैं, माँ बाप जो है, तो अच्छी तरह से पता करवाएं, उसके बाद रिश्ते का स्टेप लें। अच्छा जी, अब जनाब रिश्ता देखने के लिए आए हैं, ये लोग गए हैं, लड़का तो नहीं मिला क्योंकि उससे कनाडा में है, तो चलें जी स्काइप पे बात कर ली, लड़का पसंद आ गया, ठीक है। अब लड़के के घर वाले आएंगे, ठीक है, हो सकता है लड़का भी कनाडा से आ गया हो, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, वो लड़का भी कनाडा से आ गया हुआ, अब रिश्ता देखना। अच्छा जी, कनाडा वाले की पूरी फैमिली गई है लड़की को देखने के लिए, ठीक है, लड़का नहीं आया, और वो सब ने उसको देखा है, उसके देवर ने, जेठ, जो भी जितने भी लड़के और लड़कियां हैं, सास ससुर, सब ने उस लड़की को देखा, उसकी तस्वीरें खींची हुई घर ला के भाई को दिखाई हैं, जी ये हम आपके लिए पसंद करके आए, ठीक है। अब देखें जो गुड़िया है उसका रिश्ता देखने लड़का खुद आया, यस, वो खुद आया, उसके माँ बाप आए, ठीक है, लेकिन बाप जो था उसको उन्होंने ड्राइंग रूम में बिठा दिया, क्योंकि अभी जो ससुर नहीं बना वो, तो वो महरम नहीं है। अब यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूं आप सबको, बहुत से लोग क्वेश्चन पूछते हैं क्या हम देख सकते हैं या नहीं देख सकते। देखें, दीन ने आपको इजाजत दी है, आप फर्स्ट टाइम लड़की को देख सकते हैं, यस।
अलाउ है। आपको पता है कि जब एक वाक़या है, मैं मफहूम बता रही हूँ कि एक सहाबी की शादी होनी थी अंसार की औरत के साथ, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा कि आप जाके एक दफ़ा देख आएँ, क्योंकि अंसार की जो औरतें थी उनकी आंख में थोड़ा डिफेक्ट होता था, आप एक नज़र उनको देख आएँ। तो एक नज़र यानी कि एक लड़का लड़की को देख सकता है, ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि जो पिक्चर में नज़र आता है वो ठीक नहीं होता। लड़का आए वो देख, अब अगर लड़का आए भी उसके साथ के पूरे घर वाले आ गए हैं तो लड़के बेचारे ने शर्म से आंख क्या उठानी है, उस वक्त उसका देखना लाजमी है। लड़की भी लड़के को देख ले और लड़का भी लड़की को देख ले, क्योंकि देखिए जब पिक्चर्स पास की जाती हैं, क्योंकि मैं खुद पर्दा करती हूँ इसलिए मैं ज़्यादा पर्दे को फोकस कर रही हूँ, कि जब लड़कियाँ जो पर्दा नहीं भी करती लड़की, जब वो पिक्चर्स भी भेजी जाती हैं ससुराल वालों को, तो वो पूरे ससुराल में और पता नहीं कहाँ कहाँ किस किस मुल्क में तस्वीरें भेजी जाती हैं, जी ये लड़की देखी है, ठीक है। और बाकायदा लड़कों का एक फोल्डर बना होता है जिसने पूरे रिश्ते जिधर इधर रिश्ता देखा है वो सारी लड़कियों की तस्वीरें होती हैं। तो अपनी तस्वीर मत भेजें, कभी मत भेजें अपनी तस्वीर, उनको बोले आप लाइव आके देख लें, ठीक है, आप स्काइप पे देख लें, ठीक है। लेकिन बेहतरीन ये है कि लड़का खुद जाए और जाके लड़की को देख के आए, फर्स्ट अटेम्प्ट दैट्स इट, ये नहीं कि उसके बाद वो एक और सिलसिला होगा इंशाल्लाह।